Okay, let's begin the class. And today I am, moving forward the discussion that we were having yesterday or that we had yesterday. So I'm going to begin it or resume it. Okay. And yesterday we had the last discussion on liturgical drama. And in liturgical drama, I gave you the idea what liturgical drama is and how we can identify it and in which year or in which century they were developed. Okay, and what liturgy mean and what is the meaning of liturgical drama. So we should have a clear idea about what these things are when we read liturgical drama, mystery play, etc. Okay, so this was the last discussion that we had yesterday. Now I proceed to next slide. It's a short slide. It Amit, you are doing great. Yes, I am happy with that. Okay, so this was the last line. These were the last line about liturgical drama. एक बात ध्यान रखिएगा कि liturgical drama was originally in Latin language. It's a good point. You people can note it down. Note it down, please. Liturgical drama, which was in the 12th century, it was actually it was originally Latin language, and later liturgical drama had its form in vernacular languages. वर्निकुलर का मतलब है आप लोकल लैंग्वेजेस में भी इसको लिखा गया बाद में, और ये चर्च से बाहर निकला. Earlier it was just a part of mass or church services, but later it came out of the church and it came into society, and it in liturgical drama they changed the theme later. बाद में इनमें थीम चेंज होने लगी और ये चर्च से बाहर आने लगा. शुरुआत में चर्च का ही पार्ट था. ओके, जैसे अगर हम बात करें और हिंदू टेम्पल्स, there used to be jhanki or kind of bhajans, and there was some religious functions in temples. In the same way, in churches, there used to be liturgical drama, and its language was Latin, though we find that later liturgical drama was written in vernacular language also. Vernacular का मतलब local language जो वहाँ की थी, वहाँ में भी उसके बाद में भी लिखा जाने लगा. But originally, yes, it was in Latin language. And the last point that we had yesterday, it was that the full development that liturgical drama saw was in the 12th century. 12वीं शताब्दी में पूरी तरह से इसका विकसित हुआ. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो देखते हैं. This was the last slide or last thing that we want to study after liturgical drama. अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या आया कि लिटर्जिकल ड्रामा के बाद जो है विकास हुआ मिस्ट्री प्लेस का. राइट, मिस्ट्री प्लेस बेसिकली क्या थे? मिस्ट्री प्लेस वर बेसिकली द प्लेस ऑन बिब्लिकल थीम्स. I mean to say that biblical mystery plays were written on biblical themes or biblical stories, and we saw, or I can say, the readers can come to know that in mystery plays there were stories from the Bible. So I can say that yes, it's a kind of a biblical drama. मिस्ट्री प्लेस को आप बिब्लिकल ड्रामा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर कहानियां जो थी वो मिस्ट्री बाइबल से ही ली जाती थी. ओके, so today I'm going to start mystery plays, and then we'll come to some further points. First thing that I see on the screen, and you can see that the first line says medieval plays that depict scene from the Bible. First line is very important. As I said in the beginning, that mystery plays were based on the themes that were taken from the Bible, or you can call them biblical drama. इन्हें आप biblical drama भी कह सकते हैं, because these plays were based on the Bible or its stories. तो पहली बात, ये मध्ययुगीन मध्यकाल का जो है नाटक था. ओके, और इसमें जो मिडिवल प्लेस का मध्यकालीन जो नाटक थे ये मिस्ट्री प्लेस, इनकी पहली परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ध्यान दीजिएगा कि मिस्ट्री प्लेस बेसिकली क्या थे. ये बिब्लिकल ड्रामा ही कह सकते हैं, क्योंकि जैसी पहला इन कह रही है, यू कैन रीड इट दैट दीज वर द मिडिवल प्लेस that depict scene from the Bible.
और ज्यादा हमें बोलना चाहिए डिपिक्टेड। डिपिक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट करना, पेश करना, प्रस्तुत करना। ओके, तो बाइबल से जो दृश्य थे उन दृश्यों को दिखाया जाता था इन नाटकों में। And second line says biblical mystery plays were made up of individual episodes that formed a cycle covering the range of biblical history from the story of Adam to the last judgment. Very important line, as per the themes in the mystery plays. तो mystery plays में थीम क्या, उसको ये सेकेंड लाइन क्लियर कर रही है कि ध्यान दीजिएगा, मिस्ट्री प्लेज वर, या जो स्टोरीज आती थी इन प्लेज में, ये कहानियां वर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एपिसोड्स, अलग अलग एपिसोड, घटनाएं दिखाई जाती थी इन नाटकों में। और इस प्रकार से पूरा एक चक्र बनता, साइकिल बनता था। ओके, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पूरा एक साइकिल, एक पूरा एक चक्र बनता था। ओके, और उसमें पूरे बाइबल के इतिहास को दिखाया जाता था। बाइबल के इतिहास का मतलब है एडम ईव की कहानी से लेकर, राइट, उसका जो एक्सपल्शन हुआ हेवन से, सॉरी पैराडाइज से, वहां से ईश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया, राइट, उसका पतन हुआ, और ईसा मसीह की कहानियां भी इसमें दिखाई गई। और उसके बाद लास्ट जजमेंट, जो उर्दू में कहा जाता, कयामत का दिन बोला जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट पर कि उर्दू में एक शब्द चलता, कयामत का दिन, आपने सुना होगा। तो ऐसे ही ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार से बाइबल में या जो क्रिश्चियनिटी है उसमें देर देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट जजमेंट, राइट। लास्ट जजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि कहा जाता है उस दिन सबका फैसला होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इस मिस्ट्री प्ले, इन मिस्ट्री प्लेस में देर यूज टू बी द सीन्स फ्रॉम द biblical history, and there were the stories of Adam and Eve and their expulsion from the paradise, and the crucifixion of Isa Masih or Jesus Christ, and okay, and the last judgment. ओके, द डूम्स डे भी कहा जाता है इसको, लास्ट जजमेंट डे को डूम्स डे भी कहा जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ओके, यस, सो एक चीज हम और देख रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड लाइन क्या कहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेक्टेकल्स performed cities throughout Europe on feast days, particularly the feast of Corpus Christi। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि विशेष बढ़िया शानदार तमाशे, जैसा झांकी जैसे तमाशे किए जाते थे, और ये शहरों में किए जाते थे। देयर इज नो प्रपोजिशन एक्चुअली, सिटीज से पहले देयर शुड बी इन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेक्टेकल्स का मतलब है शानदार झांकी जैसी जो है नाटक खेले जाते थे। और पूरे यूरोप में विशेष रूप जो त्योहारों का समय आता था, जैसे अपने यहाँ पर दिवाली होली आती है, ऐसे यूरोपीय त्योहार आते थे, जैसे ईस्टर का त्योहार है, क्रिसमस का त्योहार है। और एक और त्योहार आया करता था, कॉर्पस क्रिस्टी। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ नेम, कॉर्पस क्रिस्टी, जिसका मूल अर्थ होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो याद रखिएगा कि जो मिस्ट्री प्लेस हैं, इन्हें ज्यादातर त्योहारों के दिनों में खेला जाता था। जब त्योहार हुआ करते थे, लोग फ्री हुआ करते थे, धार्मिक त्योहार, उस समय इनको खेला जाता था, इन नाटकों को, मिस्ट्री प्लेस को। आप जानते हैं उस समय लिखने और छपने की शुरुआत नहीं हुई थी, राइट। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उस समय इतना मतलब पब्लिशिंग का काम नहीं था, इसलिए लोग अक्सर इनका परफॉर्मेंस ही देखा करते थे। शेक्सपियर के ज्यादातर प्लेज हैं, परफॉर्मेंस की डेट है उनमें, पब्लिकेशन की डेट तो बहुत बाद की है, जैसे आप सभी जानते, यू नो वेरी वेल दैट all the plays of Shakespeare were published in the first folio in 1623, and earlier than that or before that they used to be performed rather than published। उससे पहले नाटकों को जो है वो छप, क्योंकि पब्लिशिंग उतना कॉमन नहीं था, इट यूज्ड टू बी ए टफ और डिफिकल्ट वर्क, or sorry, piece of work, right? And another thing is that publishing was costly those days। okay, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो मिस्ट्री प्लेस था, इनको त्योहार के दिनों में खेला जाता था, पूरे यूरोप के शहरों में खेला जाता था, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी, विशेष रूप से एक त्योहार आता था, कॉर्पस क्रिस्टी का त्योहार आता था, उस त्योहार पर ये काफी ज्यादा इसको खेला जाता था। इस कॉर्पस क्रिस्टी का जो ये डे है, एक लाइन लिख लीजिएगा, कॉर्पस क्रिस्टीज डे, फीस्ट डे वाज प्रपोज्ड इन 1264, 1264 में
इस त्योहार की स्थापना की बात आई और 1311 में इसको पूरी तरह से इसको मान्यता दे दी गई इस त्योहार को। कॉर्पस क्रिस्टी का जो फीस्ट है, ये त्योहार हुआ करता है। फीस्ट का वैसे मूल अर्थ होता है दावत, भोजन, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉर्पस क्रिस्टी का जो फीस्ट है, इसको शुरुआत हुई थी 1264 में, एंड देन इट वाज कंफर्म्ड इन 1311। 1311 में इसको पूरी तरह से मान्यता मिल गई थी, यानी ये त्योहार माना जाने लगा 1311 में पूरी तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बार पर। और 1311, और वैसे अगर देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, द मीनिंग ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह की जो शरीर है, लाश है, उसको कॉर्पस क्रिस्टी कहा गया है, तो वो एक त्योहार के रूप माना जाने लगा। और एक एक तो लाइन लिखी, आप पढ़ सकते हैं कि फीस्ट डे in honor of the Eucharist observed by Roman Catholics and High Church Anglicans on the Thursday after Trinity Sunday। लिखा है कि ट्रिनिटी संडे त्योहार आता है, उसके बाद जो थर्सडे आता है, बृहस्पतिवार आता है, उस दिन को ये दिन मनाया जाता है, कॉर्पस क्रिस्टी का दिन मनाया जाता है। मूल रूप से ये त्योहार जो है रोमन कैथोलिक्स मनाया करते थे, और हाई चर्च, चर्च का एक टाइप है, उसको मानने वाले एंग्लिकन्स चर्च के लोग भी इसको मनाया करते थे। सो इस कॉर्पस क्रिस्टी को ये देयर यूज्ड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेक्टेकल्स, और देयर यूज्ड टू बी परफॉर्मेंस ऑफ मिस्ट्री प्लेज, राइट। अभी मैं कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ मिस्ट्री प्लेस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान रखना कि मिस्ट्री प्लेस दिखाया क्या करते थे, ये मैंने सेकंड लाइन बता दी। यू कैन रीड द सेकंड लाइन। बिब्लिकल हिस्ट्री और द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल यूज्ड टू बी द थीम in mystery plays, okay? And now the fourth line says that these mystery plays, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, these mystery plays were produced by or sponsored by। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मिस्ट्री प्लेस है, इनमें पैसा किसका लगता था, कौन में पैसा लगाता था, कौन खर्चा करता था? तो यार ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखी हुई है, लोकल ट्रेड गिल्ड्स। वहां के जो स्थानीय व्यापार संघ हुआ करते थे, वो पैसा लगाया करते थे इसमें, ओके। लोकल जो व्यापार संघ थे वहां के, वो उनमें पैसा लगाया करते थे, शहरों के। और उन शहरों के नाम पे ही बाद में इनका नाम पड़ा था। ध्यान दीजिएगा कि मिस्ट्री प्लेस जिस नाम से आज जाने जाते हैं, उन नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो उन शहरों में आयोजित हुआ करते थे, जैसे आप अगली लाइन में पढ़ेंगे अभी। फिलहाल द फोर्थ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ its production or its sponsorship. So fourth line is important, that mystery plays were produced by local trade guilds of the town in which they appeared। आप लोगों को सुनील याद होगा, हमें ध्यान होगा कि ज्यादातर जो नौटंकियां, रामलीलाएं हुआ करती थी, आजकल तो शायद कम होती हैं, स्वांग वगैरह हुआ करते थे, आपने देखो पुराने सेठ वगैरह ही इनको आयोजित किया करते थे गांव बस्ती में। यस सर। पुराने जमाने में जो सेठ हुआ करते थे, अपने दादा वादा से पूछना, आप ध्यान नहीं हो आपको तो मम्मी पास पूछना, तो पुराने सेठ वगैरह जो व्यापारी हुआ करते थे, वही पैसा लगाया करते, क्योंकि आप ध्यान दिया होगा, दीज ट्रेडर्स और yes, these these local traders used to be rich people, and they were very interested in religious things, and they were in social welfare, they were in favor of social welfare, सामाजिक कल्याण की बातें किया करते थे। इन राजस्थान यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ dharmshalas and gaushalas and hospitals and you know all other temples. These all the buildings were used to be built by these traders, or we call them baniyas or vyaparis, right? तो ये जो ज्यादा मर्चेंट्स हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते, यही आपने देखा होगा गांव बस्ती में धर्मशालाएं, मंदिर और धर्म कर्म की बातें, भंडारे करना, okay, they used to have religious feast. So in India even we can see that these things were produced or sponsored by the local traders or local merchants. In the same way we can see in Europe or in England, these mystery plays were used to be the mystery plays used to be held or sponsored by the local trade guilds, कहा जाता था। और ये जो शहर के लोकल ट्रेड गिल्ड्स, गिल्ड्स का मतलब संघ है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ग्रेड गिल्ड, यहाँ पर जो गिल्ड का मतलब है वो है संघ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। One second please, there is a common word that I should tell you.
Okay, I couldn't get it. Okay, ठीक है. तो and now we come to the fifth line, and fifth line says the area between the platform and the audience was known as Platy or Platia. ध्यान दीजिएगा कि जो दर्शकों और मंच के बीच में जो स्थान हुआ करता था उस स्थान को प्लेटिया कहा जाता था. कभी कभी सुनील याद रखना, अमित याद रखना, देर यूज टू बी, sorry, I mean to say there are some questions that are related to particular terms or that are on particular terms used in earlier plays, drama, literature. कई बार एक particular term भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना. तो एक यस सर, के पिछली सामने, बार विजिट में आया था, राइटर को क्या कहते हैं वहाँ की हाँ, ठीक 2007। you're right. तो ऐसी चीजें सुनील नेट में पूछ ली जाती है. तो ध्यान दीजिएगा, पांचवी लाइन में एक शब्द आ रहा है प्लेटिया. प्लेटिया का मूल अर्थ है प्लेस. और ये प्लेटिया किसे कहा जाता था? ये उस जमाने जो मिस्ट्री प्लेस खेले जाते थे, मिस्ट्री प्लेस खेले जाते थे, तो प्लेटफॉर्म जो मंच हुआ करता था और जो दर्शक हुआ उनके बीच में जो स्थान था वो प्लेटिया कहलाता था. ओके. एंड नाउ वी कम टू द सिक्स्थ लाइन. सिक्स्थ लाइन सेज दैट फॉर एमएस, एमएस का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, याद रखना सुनील, ये इंपॉर्टेंट शब्द है. एमएस, एमएस का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट. इसको ऐसे ही लिखा जाता है एमएस को, मैन्युस्क्रिप्ट्स, MANUSCRIPTS. मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब हिंदी में कहते हैं हस्तलिपि. अगर आपने सुना होगा, हस्तलिपि एक शब्द चलता है, यानी हाथ से लिखे जाते थे पहले नाटक. ठीक है. तो ऐसे ही चार जो हाथ से लिखे हुए इंग्लिश साइकिल्स हैं. साइकिल्स का मतलब टोटल कितने प्लेज खेले गए, उनको साइकिल्स कहा गया. और ये जो 4 MS और 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, दीज 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इन द नेम ऑफ यॉर्क, वेकफील्ड, चेस्टर एंड एन टाउन. एन टाउन मीन द लास्ट इज अनोन, एन टाउन मीन अनोनमस, रिमेंबर दैट. सो अभी वर्तमान में चार प्रकार से चार साइकिल जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में प्रिजर्व्ड हैं, प्राप्त हैं, देखे गए हैं. यानी अभी जो प्राप्त होते हैं मिस्ट्री प्लेज, वो चार, इन चार शहरों के नाम पे चार मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त होते हैं. इन चार मैन्युस्क्रिप्ट्स में अलग अलग संख्या में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो दिए गए हैं. ओके, ध्यान दीजिएगा. एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो देख लो, एक चीज सी दैट this is the, I think, the most important lines in terms of the net exam or net syllabus. नेट में ये एक क्वेश्चन बन सकता है, सुनील ध्यान रखना, अमित. एंड दैट दीज द 4 MS, MS का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखे हुए चार संग्रह हैं, चार साइकिल्स हैं जो मिस्ट्री प्लेज के रूप में संग्रहित हैं. और यू कैन से दैट दे कैन बी seen even now in these days, and they must be in some museum etc. Okay. तो ध्यान दीजिएगा कि ये अभी सुरक्षित हैं, इनको आप प्राप्त, इनको देखा जा सकता है. 1 second please. Okay, perhaps I lost something. Cool. So this is an important line, and please write it down, or you can note it down, or you can note it down later. Now see, अब देखिए चार जो है, यॉर्क, वेकफील्ड, चेस्टर एंड एन टाउन, ये चार प्रकार से जो हस्तलिपियां प्राप्त होती हैं आज भी. एक है यॉर्क MS, एक वेकफील्ड MS, MS का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक चेस्टर MS और एक एन टाउन. एन टाउन का मतलब है द नेम इज अनोन, अनोनिमस, नहीं जानते कौन सा शहर है. इन चार शहरों के नाम पर यू फाइंड 4 MS, राइट. चार जो है वो आपके सामने मैन्युस्क्रिप्ट अभी प्राप्त हैं, अभी प्रिजर्व्ड है. प्रिजर्व्ड का मतलब है संरक्षित हैं, संग्रहित हैं. ओके. ये चारों नाम याद रखिएगा, यॉर्क, यॉर्क MS, वेकफील्ड, चेस्टर एंड एन टाउन. एन टाउन का मतलब है कि इनका नाम हम नहीं जानते हैं, इसका नाम पता नहीं कौन से शहर के नाम पे है, पर ये चार जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है. ठीक है. यॉर्क एक शहर है इंग्लैंड में, वेकफील्ड, चेस्टर और एन टाउन. And the seventh line says the Wakefield cycle or the manuscript is the most famous for its writing skill shown by the anonymous playwright, the Wakefield master. Remember it. It's a good line, important line. जो पहला दूसरा वाला साइकिल है और दूसरा वाला मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका नाम है वेकफील्ड साइकिल, वेकफील्ड MS और मैन्युस्क्रिप्ट.
is the most famous. ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. Why? Because though we don't know the name of the writer who wrote these Wakefield cycle, Wakefield plays, Wakefield mystery plays, किसने लिखे पता नहीं, उसका नाम अनजान है, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है, काल्पनिक नाम दिया गया है, द वेकफील्ड मास्टर. The Wakefield Master is the name given to the anonymous writer or playwright, okay, who wrote the Wakefield cycle or Wakefield mystery plays. जिसने Wakefield में खेले गए नाटक लिखे हैं, उसका नाम पता नहीं कौन था राइटर, लेकिन इसलिए उसको एक काल्पनिक नाम दे दिया गया है. और काल्पनिक नाम क्या है? द Wakefield Master. This is the imaginary name given to the anonymous writer or playwright. And एक पॉइंट हम और देख रहे हैं, द वेकफील्ड मास्टर, इसी राइटर का जिसका जिक्र आया है 7th लाइन में, इसी राइटर का there is a play, the second shepherd's play is a marvelous mixture of the solemn and the comic, the sacred and the profane. It means that in this play, which was written by the anonymous playwright whose imaginary name is the Wakefield Master, इसका एक फेमस जो नाटक प्राप्त हुआ है जिसका नाम है the second shepherd's play. This play is a beautiful play because it has the mixture of seriousness, okay, and humorous, humorous element. The sacred, it talks about, it shows the religiousness, and profane. There is something bad also in terms of religiousness. यानी चारों एलिमेंट इस नाटक में देखे जा सकते हैं. इसमें गंभीरता भी है, हास्य भी है, पवित्रता भी है, और थोड़ा सा ईश्वर के बारे में थोड़ा, मतलब थोड़ा सा प्रोफेनिटी भी है. प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन होता है जो धर्म के खिलाफ है, वो या धर्म के खिलाफ बोला जाए, वो प्रोफेन कहलाता है. रिमेंबर दैट, ओके. तो प्रोफेन का मतलब है व्हाट इज बैड और व्हाट इज नॉट गुड और व्हाट इज इरिलीजियस, नॉट रिलीजियस, वी कैन से. ध्यान दीजिएगा, ओके. सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मान जाता है. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द प्ले, द सेकंड शेपर्ड्स प्ले. अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये किसने लिखा था? द वेकफील्ड मास्टर. हु वाज द वेकफील्ड मास्टर? वी डोंट नो द रियल नेम ऑफ दिस man, the Wakefield Master, yes, but he wrote this play, and he was also the writer of the Wakefield cycle, which is the second, you can see the second in the series. York cycles, Wakefield cycle, Chester cycle, and N-Town cycle. N-Town का मतलब है unknown. We don't know the name of this, okay. ये आप कह सकते हैं. Okay, so this was the last slide. Now I change the slides and we go further. We see some more slides. Wait for a second, please. Yes, here we are. Okay, so after mystery plays, we see miracle plays. ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ चुके हैं कि मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी हमने बात की है. ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उनके बारे में हमने बात की है. और अब उसके बाद जो सेकंड फेज आया, आई मीन टू से दैट the plays that developed from mystery plays were called miracle plays. Miracle means wonder और marvel, चमत्कार कहा जाता है, स्पेशली धार्मिक अर्थ में. ध्यान दीजिएगा. I think you people might have heard about the miracles of a saint or a deity or a local god or something like that. जैसे हिंदी में कहते हैं चमत्कार, किसी संत महात्मा के चमत्कार के बारे में आपने अक्सर सुना होगा. आपकी गांव बस्ती के आसपास, शहर के आसपास, you generally hear of such things like a miracle that some saint did that miracle, और किसी संत ने चमत्कार कर दिया, हैंड, ओके, जैसे आप सुना होगा कि उसको जीवित कर दिया, ठीक कर दिया, समथिंग लाइक दैट. अक्सर ऐसी बातें आप सुनते रहते हैं. इसी प्रकार से remember that miracle plays developed from the mystery plays. Okay, तो mystery plays के बाद जो देखो, पहला जो सबसे पहला जो फॉर्म है ड्रामा का, वो कौन सा कहलाया? वो कहलाया लिटर्जिकल ड्रामा.
Okay, yesterday I told you about the liturgical drama, and it was the first form of drama. And from liturgical drama developed mystery plays, and from mystery plays developed miracle plays. So we can say that in this series, the miracle plays are the third element or third item or third entry. ओके, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल वे में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हालांकि जैसे कल भी मैंने पढ़ा था, कल भी हमने बात की थी कि सम पीपल, सम क्रिटिक्स से दैट actually mystery plays and liturgical drama used to be played together. I mean, used to exist in the same period. ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि मिस्ट्री प्लेस बाद में नहीं आए, वो लिटर्जिकल ड्रामा के साथ ही चल रहे थे। लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि नहीं, लिटर्जिकल ड्रामा से ही डेवलप हुए हैं मिस्ट्री प्लेस। And in the same series or in the same sequence on this in this chronological order, we can see that miracle plays are the third type of plays, mystery plays. तो mystery plays के बाद जो अगला जो ड्रामा का हम फॉर्म देखते हैं, that form is called miracle plays. As you can see, the first line, can you see the picture clearly? आपको पिक्चर साफ दिख रहा है सामने स्क्रीन पर? यस सर। गुड, ओके। जानबूझ के मैंने थोड़ा ब्राइट कलर रखा है ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं, ओके, क्लियरली दिखना चाहिए। वेल, तो ये सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि मिरेकल प्लेस जो है वो शुरुआत इनकी हुई थी। थैंक्स अमित, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो मिरेकल प्लेस डेवलप्ड फ्रॉम मिस्ट्री प्लेस, एंड इनमें थीम क्या हुआ करती है? जैसे अमित ज्ञान सुनील, यू जस्ट रेड दैट mystery plays used to show the stories from the Bible, or they used the themes. In the same way, miracle plays used to show or used to dramatize saints' lives and divine miracles and legends of miraculous intervention by the Virgin Mary or Mother Mary. Virgin Mary किसे कहा जाता है आप सब जानते हैं। जो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह है उनकी माँ को वर्जिन कहा जाता है, ठीक है। इसके पीछे कहानी सुनील ये है दैट ये माना जाता है, जैसे अपने यहाँ भी माना जाता है, भारतीय पुराणों में भी आपने पढ़ा होगा कि for example, you know, some heroes or warriors were not born from the stomach of their mother. Actually, they were not the result of coitus or sexual process, right? Actually, they were divine incarnation. अक्सर हम मानते वो देवता दान करके गए, सुना होगा आप लोगों ने। यस सर, यस सर। हनुमान जी के जन्म के बारे में माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो सूर्य पुत्र कहा जाता है हनुमान जी को, या पवन पुत्र कहा जाता, ठीक है। तो जी मतलब जो वायुदेव ऐसा कहा गया पुराणों में, उनका उन्होंने ये नहीं कि उन दोनों का मिलन हुआ था, अंजनी का, हनुमान जी की माँ का और पवन देव का मिलन हुआ था, ऐसा नहीं कहा गया है। वो डिवाइन वे में, दैवीय तरीके से ही उनके गर्भ में हनुमान जी को स्थापित किया था, ऐसा माना जाता है। इन द सेम वे in Christianity, Christian people think they believe that Jesus Christ was not the prediction of, or was not the result of, mating of their parents, his parents. Actually, इसीलिए Jesus Christ's mother is called virgin because Jesus Christ was not born as the result of the coitus or वो कोई मीटिंग का परिणाम नहीं थी जीसस क्राइस्ट का कहा, इसलिए उनकी माँ को वर्जिन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप। बिल्कुल सुनील, अमित, यू आर राइट कि महाभारत में कर्ण के बारे में भी ऐसा कहा गया, यू राइट। ऐसे कई पात्र हम सुनते हैं कि कर्ण के बारे में ये माना जाता है, कुंती पुत्र कर्ण जो है वो सूर्य देव का पुत्र था, एंड he was actually given as a boon, or as a we can say that as a blessing from from the god of the Apollo, or the sun god, सूर्य देवता के पुत्र मान। So we see miracle plays. सुनील, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, will you please mute mute please, keep it mute, I think. Okay, so पहली चीज, दूसरी बात, ये दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। The second thing is important, that miracle plays dramatize or display or show or stage the miracles of the saints, okay, or divine intervention from the God, especially from the Virgin Mary or Mother Mary.
मदर मैरी किस प्रकार से हस्तक्षेप करती है, उनको बचाती है, अपने भक्तों को किस प्रकार से लोगों को बचाती है। ओके, और किस प्रकार से बड़े बड़े संत हुए हैं, देव जैसे निकोलस संत हुए हैं और बड़े बड़े संत हुए, उन संतों ने किस प्रकार से मनुष्यों की मदद की है, उनको चमत्कार दिखाए हैं। इन सब को दिखाया जाता है इन प्लेज में, जिन्हें कहा जाता है मिरेकल प्लेज। तो यस, मिरेकल प्लेज, एज द नेम suggests, miracle plays were the plays in which we find the miracles of the saints or miracles of the मदर मैरी और वर्जिन मैरी। तो दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सेंट्स लाइव्स एंड डिवाइन मिरेकल, दैवीय चमत्कार और संतों का जीवन, और साथ ही वो कथाएं, वो लेजेंड्स जिनमें वर्जिन मैरी, मदर मैरी का हस्तक्षेप हुआ, मदर मैरी ने किस प्रकार से अचानक मुसीबत में आके मनुष्यों की मदद की, ये सब चीजें मिरेकल प्लेस में दिखाई जाती है। एंड एक चीज और लिखी गई है, द थर्ड लाइन के जो अभी जो वर्क्स हैं मिरेकल प्लेस अभी उपलब्ध नहीं है अंग्रेजी में, एक लेकिन फ्रांस में जरूर उपलब्ध है। कहा गया है कि फ्रांस में देयर इज द साइकिल ऑफ द मिरेकल्स डी नोट्रे डेम, ये फ्रांस में एक उपलब्ध है। इसमें 42 प्लेस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, 42 प्लेस हैं, ये 42 प्लेस हैं, फ्रांस में उपलब्ध है, ये मिरेकल प्लेस हैं। इंग्लिश में तो ये उपलब्ध नहीं है मिरेकल प्लेस, ओके, कोई एक दो हो सकते हैं, पर फ्रांस में जरूर ये उपलब्ध हैं। और मिरेकल्स डी नोट्रे डेम, इसमें 42 प्लेस उपलब्ध हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इन्हें लिखा गया था लगभग 14वीं शताब्दी के दूसरे 14वीं शताब्दी उत्तरार्ध में लिखा गया था, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th century. And there is another there is another cycle, or there is another play, Li Ju Di Saint Nicholas. It was composed in about 1200 AD, करीब 1200 शताब्दी में इसको लिखा गया था। ये भी फ्रांसीसी है, फ्रेंच है, ली जू जी सेंट निकोलस। ये लिखा गया था बाय जीन बॉडेल। जीन बॉडेल एक पुराने राइटर थे, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन इंग्लिश वी डोंट फाइंड मिरेकल प्लेस, बट यस, in France or in French language, there are some miracle plays available. Even now they are preserved. Okay. एक चीज और लिखी गई है कि मिरेकल प्लेस को प्राय लिखा गया है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, यानी कि 8 सिलेबल वाले दोहे के रूप में लिखा गया है मिरेकल प्लेस को, राइट। और एक चीज और लिखी है कि ये जो प्लेस हैं फ्रांसीसी, ईच एंड्स विद अ मिरेकुलस इंटरवेंशन बाय द ब्लेस्ड वर्जिन और मदर मैरी। और अक्सर जो है इनमें हस्तक्षेप दिखाया गया है सभी में, किस प्रकार से मदर मैरी या वर्जिन मैरी आकर बचा लेती है अपने भक्तों को। कुछ जर्मन भाषा में भी उपलब्ध हैं, कुछ डच भाषा में भी उपलब्ध हैं, पर हम चूंकि वी आर कंसर्न्ड विद इंग्लिश लिटरेचर ओनली, so we find that there are not there are not many, or there are not we can say, or there are a few, there are few if any miracle plays available in English. अंग्रेजी में लगभग उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहा गया है। एक चीज और हम देख रहे हैं, सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट says that miracle plays resemble saint plays, but saint plays focuses on the life or martyrdom of a saint. This line is important. कई बार मिरेकल प्लेस को सेंट प्लेस भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, कि मिरेकल प्लेस को सेंट प्लेस भी कहा गया है। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि सेंट प्लेस को थोड़ा अलग माना जा सकता है। किस प्रकार से अलग माना जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। मिरेकल प्लेस को, ये 7th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि मिरेकल प्लेस को समटाइम्स इट इज समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड विद सेंट प्लेस, बट लेकिन ये कह रहा है सेंट प्लेस जो है या सेंट प्ले है, वो फोकस करते हैं ओनली ऑन द लाइफ ऑफ एंड मार्टरडम ऑफ द सेंट। किसी संत की शहादत, किस प्रकार से किसी संत ने जान दे दी अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, इस पर फोकस होते हैं सेंट प्लेस। लेकिन ज्यादातर अर्थों में मिरेकल प्लेस सेंट प्लेस से मिलते जुलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो सेंट प्लेस होते हैं, जो संतों के नाटक होते हैं, वो संतों के नाटक, वो ज्यादातर उनमें संत की जीवन और संत की शहादत को दिखाया जाता है। अपने यहाँ पर सुनील, आपने सुना होगा, अमित तुमने भी सुना होगा कि वी रीड द स्टोरीज ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। Okay, these were the great saints in Sikh or in Sanatan Dharma, and these saints sacrificed their lives and their people and their families for the sake of their religion or for their principles. इन लोगों ने किस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने
और गुरु गोविंद सिंह ने, किस प्रकार इन लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया धर्म के लिए, इसलिए आज भी इन लोगों को महान माना जाता है। ऐसे ही इन इंग्लिश लिटरेचर वी फाइंड, यस अमित, पाबूजी, आई हैवंट रेड अबाउट पाबूजी, आई एम सॉरी। यस, वैसे नाम सुना है, ज्यादा पढ़ा नहीं इनके बारे में, पाबूजी के बारे में। तो ऐसे कई संत महात्मा हुए, अपने भी हिंदुस्तान में हुए हैं। एंड दीज सेंट्स sacrificed their lives for the sake of religion, for the sake of their society, or for the sake of the goodness. Okay, इन लोगों ने ऐसा किया। ऐसा ही सेंट प्लेस भी हुए क्रिश्चियनिटी में, और वो उन संतों के जीवन पर जो आधारित। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। मिरेकल प्लेस में डिवाइन मिरेकल्स दिखाए जाते हैं और वर्जिन मैरी के इंटरवेंशन को दिखाया जाता है, किस प्रकार से वर्जिन मैरी ने आकर लोगों की मदद की। जबकि सेंट प्लेस में वी सी दैट saints, how saints sacrifice their lives and their people and their family, their families, if they had any, or their joys and their, they suffered for, or they died for the noble cause, religious cause. Okay, so ye last line important hai. So this was there are something about miracle plays. Miracle plays के बाद the next form of next types of plays that we see were morality plays. Okay, next that we see were morality plays. Okay, as you see here. Okay, now we come to morality plays. What types of plays were morality plays? And this was the next evolution or next development from miracle plays. ऐसा माना जाता है कि जो morality plays जो है, these plays evolved from miracle plays. Okay, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने पढ़ा liturgical drama, then when we read about, or then we read about mystery plays, and then we came to know that there were miracle plays, and now we have in front of us morality plays. मॉरलिटी प्ले सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि मॉरलिटी प्ले क्या होगा। अगर आप देखें, वो द वर्ड मॉरलिटी मींस द गुडनेस, और काइंड ऑफ द स्टेट ऑफ हैविंग प्रिंसिपल्स, हैविंग गुडनेस इन लाइफ। नैतिकता को मॉरलिटी कहा जाता है। ओके, सो मॉरलिटी प्लेज वर द टाइप ऑफ इंग्लिश प्लेज. Okay, and these plays were popular in the 15th and early 16th centuries. 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ये प्लेस काफी पॉपुलर थे। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। इन प्लेस में होता क्या है, जैसे मिरेकल प्लेस में संतों के जीवन को संतों के जीवन, उनके चमत्कार को दिखाया जाता है, वर्जिन मैरी के चमत्कार को दिखाया जाता है। इन द सेम वे, in morality plays, there used to be some characters who were the concrete form of virtues and vices. ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि morality plays में अच्छे और बुरे जो हमारे गुण अवगुण हैं, उनको पर्सोनिफाइड करके मंच पर दिखाया जाता था। सुनील, याद रखना मेरी बात को। अमित, रिमेंबर, please keep these words in mind, that morality plays used to show the personified forms of vices and virtues, सद्गुण और अवगुण, बुरे और अच्छे गुणों को मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था मॉरलिटी प्लेज में, मंच के ऊपर। और ये जो लोग हैं, ये नाटक में एक तरह से हुआ करते थे, और नाटकों में, इन नाटकों में ये जो हमारे गुण अवगुण है, ये मनुष्य के रूप में दिखाए जाते थे। एंड देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन दीज द टू फोर्सेस ऑफ इविल एंड गुडनेस। अच्छाई और बुराई के जो ताकतें हैं, उन ताकतों में संघर्ष को दिखाया जाता था। एंड अंत में सत्यमेव जयते, इट मींस दैट इन द एंड द गुड वन, जो अच्छाई है वो जीतती थी, ये दिखाया जाता है नाटकों में। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा। Morality plays developed from the mystery and miracle plays of the Middle Ages. ये seventh point देखिएगा, sorry sixth point देखिएगा। In the sixth point we see that morality plays developed from the mystery plays and miracle plays of the Middle Ages.
मध्यकाल में जो मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस खेले जाते थे, उनसे ही विकास हुआ है मोरालिटी प्लेस का। ओके, और इन्हें 15वीं और 16वीं शताब्दी में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। 16वीं शताब्दी के मध्य तक, पूरी तरह नहीं, के मध्य तक ये पॉपुलर थे। तो ये मैंने छठा पॉइंट पहले से ले लिया, बिकॉज इट्स related to or connected with the origin of the morality plays. Okay, now I come back to the second point. In these morality plays, the characters exemplified moral or religious abstractions. नैतिक और धार्मिक जो गुण होते हैं, या नैतिक और धार्मिक जो मान्यताएं होती है, धारणाएं होती है, उनको मनुष्य का रूप देके पात्र के रूप में इन नाटकों में दिखाया जाता था। आगे लिखा है, इट आया है मॉरलिटी प्ले के लिए। इट शोज ए बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड इवल इन द ह्यूमन सोल। मनुष्य की आत्मा में जो अच्छा, अब हम जानते हैं, आप सभी लोग समझते हैं कि हमारे अंदर गुण भी हैं, बुराइयां भी है। हम भी बुरे काम करने के बारे में भी सोचते हैं, राइट। सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं, क्योंकि हम डर जाते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे दिमाग में अच्छे बुरे कर्म सब आते हैं विचार के रूप में, राइट। मेरे ख्याल से आप लोग अग्री करते हैं इस बात से। हम किसी को कई बार मारने के बारे में सोचते हैं, हम और भी बुराइयों के बारे में सोचते हैं, हम जलाने के बारे में सोचते हैं। ये बुराइयां हमारे दिमाग में आती है, हम चिढ़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, हम गुस्से में किसी का नुकसान के बारे में सोचते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, थर्ड पॉइंट में कहना चाह रहा है कि मनुष्य की आत्मा में जो अच्छी और बुरी चीजें हैं, यानी गुडनेस और ईवल है, बुराई अच्छाई दोनों चीजें मनुष्य की आत्मा में, उनके अंदर संघर्ष दिखाया जाता है नाटकों में, राइट। और उसके साथ ही मनुष्य के अंदर जो कि उसे सजा मिलेगी मरने के बाद, आफ्टर डेथ ही विल बी सब्जेक्ट टू डैमनेशन। डैमनेशन क्या होता है, जो मतलब उसे नरक में डाला जाएगा, उसे यातनाएं दी जाएंगी, मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ बुरा किया जाएगा, ये डर दिखाया जाता था। ओके, एंड मैंस नीड फॉर सैल्वेशन, और साथ ही मनुष्य को मुक्ति की चाह रहती है। सैल्वेशन होता है मुक्ति, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम गुडनेस और बैडनेस काइंड ऑफ। किस प्रकार से अंत में वो मुक्त हो जाएगा, तो मुक्ति की इच्छा, ओके, सजा का डर कि मरने के बाद उसे दंड दिया जाए, उसकी आत्मा के साथ बुरा किया जाएगा, और साथ ही मनुष्य की आत्मा जो अच्छाई बुराई, इन सारे संघर्ष को इन नाटकों में दिखाया जाता है। तो आई कैन read the third line again, that a morality plays shows a battle between the forces of good and evil in the human soul, and the fear of damnation and man's need for salvation. The fourth point says that, एक बात ध्यान रखिए, सारी चीजें ये पर्सोनिफाइड होके दिखाई जाती थी मंच पर। जैसे उदाहरण देता हूं आपको मैं, आगे अभी आएगा, मैं बात करूंगा। द फोर्थ लाइन पढ़िएगा। ये जो नाटक है, दीज प्लेज यूज टू बी डायडेक्टिक इन टोन। डायडेक्टिक का मतलब मॉरलिस्टिक हुआ करते थे, नैतिकतावादी हुआ करते थे, यानी मनुष्य में नैतिकता का विकास करने के लिए इन नाटकों को दिखाया जाता है। उस काल में, कौन से काल में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ओके, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो नाटक है, बेसिकली ये नाटक एलिगोरिकल हुआ करते थे। दीज प्लेज वर एक्चुअली एलोगोरीज इन ड्रामा। एलोगोरीज का मतलब क्या होता है, एलोगोरीज are the pieces of literature in which we see two stories, one story that we read or that we enjoy, another story in a symbolic form. Allegory प्रतीक कथाएं हुआ करती हैं, वो नाटक के रूप में हो सकती है, उपन्यास के रूप में हो सकती है, कविता के रूप में हो सकती है। एलेगोरी प्रतीक कथाएं होती है, उसमें एक कहानी जो हम सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और दूसरी कहानी हमारे दिमाग में चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहानी वास्तव में किस बारे में है। ऐसी कहानियों को, नाटकों को एलेगोरीज कहा जाता है। हिंदी में आप प्रतीक कथा कह सकते हैं। सो इट इज एन एलेगोरी इन ड्रामा। तो ये जो मोरालिटी प्लेज हैं, ये वास्तव में प्रतीक कथाएं हुआ करती थी। ये प्लेज के तो केवल नाम के प्लेज थे, उन प्लेज के माध्यम से अच्छाइयों बुराइयों को दिखाया जाता था, राइट। किस प्रकार से अच्छाइयां बुराइयां हमारे अंदर होती है, और हमारे अंदर किस प्रकार से दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। कि जैसे कई बार आप देख, कुछ लोग अपराध करके जेल चले जाते हैं, और बाकी लोग समाज में शांति से इज्जत वाले बनकर जीते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है, सुनील और अमित और ज्ञान, कि इट डजंट मीन दैट द पीपल हु आर लिविंग पीसफुली इन द सोसाइटी आर गुड पीपल। इसका मतलब ये थोड़ी है दे आर एज क्रूअल एज बैड एज द पीपल इन प्रिजन। वे लोग भी उतने ही बुरे जितने जेल में जो लोग बंद हैं, वैसे ही सब लोग हैं। लेकिन हम लोग जो शांति से बैठे समाज में, हम लोग वे हैं जिन्होंने अपने अवगुणों को कंट्रोल कर रखा है, अपनी बुराइयों को, अपने पाप को कंट्रोल कर रखा है। और वे लोग जो जेल में बैठे हैं, अपराध करने के बाद सजा प्राप्त कर रहे हैं, वे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी बुराइयों को कंट्रोल नहीं किया। तो हम में उनमें कोई फर्क नहीं है सुनील।
हम उनमें एक ही फर्क है, those people could not control their evil or their evil, desires, black desires, and we people were able to or are able to control our black desires. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पाप का भाव नहीं आता है, हम सब के अंदर एक ही बात है। जो जेल में बैठे हैं वे लोग, उन लोगों के मन में भाव आया था, हमारे मन में भी आता है, लेकिन उन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी बुराइयों को, अपने पाप को बाहर ले आए, और हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इसलिए अभी हम शांत हैं। कल को अगर मैं अपनी बुराई को, अपने पाप को बाहर ले आता हूँ, आई मे बी इन प्रिजन, I can be in jail, okay, I can be imprisoned, right? तो इतनी ही बात है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, समाज में नैतिकता बनी रहे, बुराई नहीं आए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये नाटक दिखाए जाते थे कि आदमी के अंदर डर पैदा किया जाए। सुनील, तुम जानते हो, अमित, तुम भी जानते हो दैट ये समाज जो बना है, जो द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन आवर कंट्रोल, and control comes from fear, and fear of society, fear of police system, fear of forces, okay, सेनाओं का डर, पुलिस का डर, समाज का डर, समाज के ठेकेदारों का डर, सरपंच का डर, पापा का डर, मम्मी का डर, ताकि घर में जो बड़े बूढ़े उनका डर, सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। ये डर जो है, दिस डर और दिस फियर इज बिहाइंड द कंट्रोल, दैट वी द कंट्रोल मैकेनिज्म, एंड दिस कंट्रोल मैकेनिज्म रन सोसाइटी। और ये जो समाज का स्ट्रक्चर ढांचा है सुनील, अमित, ये ढांचा इसलिए बना हुआ क्योंकि हमारे अंदर डर है। तो उसी प्रकार से 15वीं-16वीं शताब्दी में लोगों में डर पैदा करने के लिए, ताकि लोग पाप के रास्ते पे ना चले, so that people can follow a good path or the path of goodness, and they don't take recourse to bad or evil things. These plays uh, used to be staged in those times, right? तो इस प्रकार से ये एलिगरी हुआ करती थी, प्रतीक कथाएं हुआ करती थी। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो नाटक हैं, ये नाटक डायडेक्टिव हुआ करते थे, यानी नैतिकता दिखाने वाले नाटक हुआ करते थे, मॉरलिटी प्ले, जैसा कि नाम से लग रहा है। और एक लाइन हम पढ़ चुके हैं कि इन नाटक का जो इवेल्युएशन हुआ है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, इवोल्यूशन हुआ है, दिस द इवोल्यूशन ऑफ मॉरलिटी प्लेज वाज फ्रॉम द मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज इन द मिडिल एजेस। और एक फेमस एग्जाम्पल जो माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक फेमस एग्जाम्पल that we can take of morality plays is Everyman. Everyman एक फेमस नाटक है जिसको morality plays कहा गया है, या सबसे फेमस morality plays माना जाता है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि Everyman is a famous example of morality play. इस नाटक में ध्यान दीजिएगा, इस नाटक में जो दिखाए जाते हैं morality plays, 1 second please. Okay, cool. So yes, Everyman, which was composed in circa, C का मतलब circa, ये C क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा हो सभी को, सुनील, अमित, ज्ञान? ये C for circa, मैंने कल भी बताया था, in the last video I told you what circa means or C means. C means circa. Circa की spelling क्या है? CIRCA. Yes, yes, Yeah. yes, sir. Circa means about. It's a Latin word. Actually a preposition है जिसको C के रूप में, इसका C का मतलब सेंचुरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस C का मतलब है circa, CIRCA. Circa means about, लगभग। तो ये जो एवरीमैन नाटक लिखा गया था, ये फेमस एग्जाम्पल है किसका? मोरलिटी प्लेस का फेमस एग्जाम्पल है, और ये लगभग 1500 शताब्दी में लिखा गया था। इसमें जो पात्र आते हैं, अब देखिए पात्रों की बात करते हैं, इसमें देखो पात्र कौन कौन है। इसके पात्र हैं गॉड, ईश्वर, ईश्वर को दिखाया गया इसमें, ठीक है। एक संदेशवाहक है, दूत है ईश्वर का, उसको पात्र के रूप में। अच्छा, डेथ, देखो अब ध्यान दो, अब धारणाओं को पर्सोनिफाइड किया गया है, डेथ को व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, नॉट राइट। एवरी मैन ये क्या है? हर आदमी, मैं भी, आप भी, कोई भी हो सकता है, कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति जो है, ईसा मसीह का भक्त है, जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, वो एवरी मैन का सिंबल। तो एवरी मैन मीन्स ए मैन who follows Christianity, who follows Jesus Christ, okay. वो एवरी मैन है, मतलब कोई भी साधारण ईसाई व्यक्ति है, वो एवरी मैन का प्रतीक है, उसको मनुष्य के रूप में दिखाया है। फिर किसको दिखाया? गुड डीड्स, गुड डीड्स को मनुष्य के रूप में दिखाया, हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनको दिखाया गया है इसमें, ठीक है। गुड डीड्स जो हम कहते हैं सदकर्म, सदकर्मों को, अच्छे कर्मों को
पुण्य को दिखाया गया मनुष्य के रूप में, कैरेक्टराइज किया गया है, आई मीन पर्सोनिफाइड किया गया। उसके बाद एक पात्र है नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को दिखाया गया मनुष्य के रूप में। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को दिखाया गया एज ए पर्सन, ओके, उसको भी पात्र के रूप दिखाया गया। कौन से नाटक में? एवरीमैन में। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत, ताकत को, जो मानसिक ताकत है हमारी, जो अंदर से हमारी आत्मा की ताकत, उसको दिखाया गया है मनुष्य के रूप में। ओके, तो आप यू कैन सी दैट these are the characters in the play Everyman, which is a morality play, which was composed in about 1500 AD. In this play, we see these are the characters. By this line, we can see that uh, these were the personifications of moral or religious things. जो नैतिक और धार्मिक बातें हैं, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है नाटकों में, जैसा कि एवरीवन के पात्रों में हम देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7th and 8th आर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एवरीमैन, ओके, इसमें ये पात्र हैं। इसके अलावा जो फेमस एग्जाम्पल हैं मॉरलिटी प्लेज के, वो ये भी हैं। द कासल ऑफ परसेवरेंस, ये लिखा गया था लगभग 1425 में लिखा गया था। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। द कासल ऑफ परसिवियरेंस, it was composed in about 1425 AD. Then another example is Mind, Will, and Understanding. It was composed in written in 1460. मुझे ज्यादातर ये कहना चाहिए कि ये 1425 में परफॉर्म किया गया था, 1460 में परफॉर्म किया गया था, बजाय के लिखने के। हालांकि कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि लगभग ये जो डेट्स या ईयर आप देख रहे हैं, these are not the exact years. These are the years that have been guessed at, or that had been guessed, that have been guessed. Okay, इनका अनुमान लगाया गया। ये जो ईयर दिए गए फिक्स नहीं है, क्योंकि पुराने नाटक हैं, पता नहीं कब लिखे गए, कोई फिक्स डेट इनकी नहीं है। और these are the years that have been supposed to be the years that were in which these plays were composed. So Everyman के अलावा the Castle of Perseverance, Mind, Will, and Understanding, and then we have Mankind. Mankind is also a good example of morality play, and it was composed in about 1475. एक बात ध्यान रखिए, लास्ट लाइन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से मैन्युस्क्रिप्ट में इन चारों नाटकों को दिखाया गया है? ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? उस हस्तलिपि का नाम है द मैक्रो मैन्युस्क्रिप्ट। राइट इट डाउन प्लीज। इस हस्तलिपि में इन चारों को शामिल किया गया है। द कासल ऑफ परसिवियरेंस, माइंड, विल, एंड अंडरस्टैंडिंग, मैनकाइंड, सॉरी, 3. So these 3 are included or have been included in the manuscript, the macro. मैक्रो नाम की जो हस्तलिपि है, उस हस्तलिपि में इन नाटकों को शामिल किया गया है, यानी ये नाटक हमें इस हस्तलिपि में प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। तो द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, एज पर द सिलेबस, एज पर द क्वेश्चन, और एज पर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन द नेट एग्जाम। ओके, याद रखिएगा। This was the basic information about morality play. Now we come to the next slide, or the next piece of information. इसमें भी morality play के बारे में ही बताया गया है, आप जैसा देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। morality play के बारे में आगे बात कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट लिखा है कि लगभग 16वीं शताब्दी के मध्य में आते आते ये जो प्लेस हैं, ये थोड़े से कम लोकप्रिय होने लगे, यानी कि लोकप्रिय नहीं रहे उतने ज्यादा जितने कि पुराने जमाने में थे। यानी 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये नाटक ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन 16वीं शताब्दी का मध्यकाल आते आते, मध्य समय आते आते, ये जो नाटक है ये कम पॉपुलर हो गए, लोग इनमें रुचि नहीं लेने लगे। राइट, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल भी प्राप्त होते इसके बाद भी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस बाय नथानियल वुड्स इन 1563। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं 1563 में एक नाटक आया था जो लिखा गया था नथानियल वुड्स के द्वारा। यू कैन सी द नेम ऑन द स्क्रीन इन द सेकंड पॉइंट। नथानियल वुड्स के द्वारा एक नाटक लिखा गया, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस। This play is considered a morality play, and this was written by Nathaniel Woods in 1563. Okay, so ये क्यों दिया गया है? This has been given to show that even after the middle of the 16th century, there were some plays that can be called morality plays.
ओके, उसके बाद एक नाटक और आया था, फुलवेल, एक महोदय थे फुलवेल, उन्होंने एक नाटक और लिखा था। नाटक का नाम था लाइक विल टू लाइक। लाइक विल टू लाइक ये एक और नाटक आया था, ये भी मोरलिटी प्ले था, ये आया था 1568 में आया था। उसके बाद एक लुप्टन महोदय थे, लुप्टन ने भी लिखा था, देयर वाज अ प्ले बाय लुप्टन एंड द प्लेस टाइटल वाज ऑल फॉर मनी, राइट, ध्यान दीजिएगा, ऑल फॉर मनी, पर आई फॉरगॉट टू मेंशन द ईयर, नो मैटर, ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस। लुफ्टन का एक नाटक आया था ऑल फॉर मनी, ये नाटक आया था, इट आई थिंक इट वाज इन अबाउट 1560, सॉरी 1571 आई थिंक, और 1570, ओके। खैर, एक और फेमस नाटक आया था क्रिस्टोफर मार्लो का, आपने नाम सुना क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस नाटक आया था डॉक्टर फॉस्टस, and it was performed in 1588, 1588 में ये नाटक लिखा गया, फिर खेला गया, और इस नाटक का नाम था डॉक्टर फॉस्टस। ये ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया। क्रिस्टोफर मार्लो ये शेक्सपियर का समकालीन का लेखक था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर ये जल्दी नहीं मरता, बिकॉज ये एक ही वाज किल्ड इन अ ब्रॉल इन अ पब, किसी पब में शराब पीकर झगड़ा हो गया इनका किसी से, क्रिस्टोफर मार्लो का। तो उस झगड़े में सामने वाले ने इनको चाकू मार दिया था, क्रिस्टोफर मार्लो को। तो क्रिस्टोफर मार्लो 29 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई थी, केवल 29 साल की, 29 ईयर्स की एज में ही वाज डेड, बिकॉज ही वाज स्टैब्ड इन द स्टमक। उन्हें पेट में छुरा मारा गया था, क्योंकि झगड़ा हो गया था किसी से उनका, शराब पीकर। तो उस झगड़े में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ लोग मानते हैं अगर क्रिस्टोफर मार्लो हैड बीन अलाइव, he would have been more popular than शेक्सपियर। कुछ लोग मानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो अगर जिंदा होते, वो शेक्सपियर से ज्यादा प्रतिभाशाली थे, और उनके नाटक कहीं ज्यादा लोकप्रिय होते। बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। तो इनका फेमस नाटक आया था डॉक्टर फॉस्टस, 1588 में आया था। इसके बाद एक नाटक और आया था बेन जॉनसन का, द स्टेपल ऑफ न्यूज, ये आया था 1625 में। इसको भी लगभग मॉरलिटी प्ले ही माना जाता, पूरी तरह से नहीं कहेंगे पूरी तरह से ये कोई मॉरलिटी प्ले था, पर कुछ अंश इसमें बेन जॉनसन के नाटक में, इस नाटक का नाम था द स्टेपल ऑफ न्यूज, इस नाटक में कुछ अंश मॉरलिटी प्ले के देखे जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे आधुनिक काल जो एग्जाम्पल लिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आधुनिक उदाहरण किसका लिया। 1908 में एक नाटक आया था, जो लिखा था जेरोम के जेरोम्स ने लिखा था। उनका पूरा नाम था जेरोम के जेरोम, दो बार जेरोम आया है। इनका नाटक था द पासिंग ऑफ द थर्ड फ्लोर ब्लैक बैक, सॉरी, ओके, रिमेंबर दैट, द पासिंग ऑफ द थर्ड फ्लोर बैक, this was the title of the play, and it's been taken as an example of morality play in the modern times। आधुनिक काल में इसको एक उदाहरण माना जाता है, किसका? morality play का। इसका शीर्षक था द पासिंग ऑफ द थर्ड फ्लोर बैक। एंड एक चीज और ध्यान रखने की है कि बेन जॉनसन का एक नाटक और आया था, वॉलपॉन, ये फेमस नाटक, ध्यान रखना, वॉलपॉन, ये एक सटायर भी माना जाता है वॉलपॉन को, लिख लीजिएगा। तो बेन जॉनसन का जैसे एक पहले पहले नाटक और था द स्टेपल ऑफ न्यूज, जो अभी आपने ऊपर देखा थर्ड पॉइंट में, उसी तरह से जो लास्ट पॉइंट में लिखा है कि बेन जॉनसन का एक फेमस नाटक आया था वोल्पोन, इसको कई लोग सटायर भी मानते हैं। ये नाटक जो आया था, इसको भी एग्जाम्पल माना जाता है मॉरलिटी प्ले का। और ये पब्लिश हुआ था, या फिर आप कहिएगा कि ये नाटक जो है लिखा गया था 1605 1606 के आसपास, लगभग ही माना जाता, क्योंकि फिक्स डेट नहीं पता इसकी। तो वोल्पोन नाम का नाटक है, इट वाज written by Ben Jonson and it is taken to be an example of satire। खैर, इसको भी मोरलिटी प्ले माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं ये मोरलिटी प्ले ही है। और एक आखिरी लाइन जो मैं सेकंड लास्ट लाइन पढ़िएगा, द सेकंड लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू रीड इज दैट मोरलिटी प्लेज हैड इन्फ्लुएंस ऑन पेजेंट एंड मास्क। बाद में कुछ नाटक खेले गए तमाशों के रूप में और मास्क के रूप में खेले गए। इन नाटकों पर भी काफी प्रभाव रहा मोरलिटी प्लेज का। व्हाट आर द पेजेंट एंड व्हाट आर द मास्क, ये हम कल जानेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि मोरलिटी प्लेज का काफी प्रभाव रहा है किन पर? पेजेंट नाटकों पर और मास्क नाटकों पर। ये भी एक प्रकार से कुल मिला के झांकियां, या फिर आप कह सकते हैं कि नाटक ही हुआ करते थे, इनमें लोग मुखौटे लगाकर नाटक किया करते थे, मास्क में और पेजेंट में। तो ये क्या है, कल इनके बारे में और जान कर लेंगे, राइट। तो आज मैं इतना ही आपको कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है।
and please go through the slides again, and take notes, good notes. Okay. And if you find any difficulty, any point, any new point, you can contact me. Okay. And I'll send you the PDFs soon, right, in the evening, later in the evening. So enough for today, I think. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you very much. Have a good time. कोई problem हो share कर लीजिएगा. Okay. Yes, sir. Thank you.